चमकते रहना, कब सहर होगी सितारे भी कहीं जानते हैं। काम उनका तो चमकना है, चमकते रहना, कब सहर होगी सितारे भी कहीं जानते हैं। और साइंस के हवाले से दिलचस्पी रखने वालों को कि एक सूरज का उफक और खुला तो ये खुला, एक सूरज का उफक और खुला तो ये खुला, हम जिसे जानते हैं उसको नहीं जानते हैं। एक सूरज का उफक और खुला तो ये खुला, हम जिसे जानते हैं उसको नहीं जानते हैं। और सर बुलंदी का जुनू क्या है लहू में राशिद, सर बुलंदी का जुनू क्या है लहू में राशिद, अहले अफलाक नहीं अहले ज़मी जानते हैं। लोग एक खेल इसे अपने तईं जानते हैं, दश्त में कैसे गुजरती है हम ही जानते हैं। बहुत नवाज। तो अब मैं गुजारिश करूंगा नाजिया दुरानी को, क्योंकि उनकी किताब भी शामिल है इसमें, तो वो नज़ामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं, तो वो मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं ताकि हम इसको जितना वक्त हमने उस सेशन पे लगाया है उसको थोड़ा सा कवर कर। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, और बेहतरीन सुनाया आपने कलम। तो किताब के बारे में मैं ये कहूँगी कि पश्तो शायरी है, गज़ल पे मुश्तमिल है, नज़म पे मुश्तमिल है और चंद गीत हैं इसमें। और नाम है इसका द ख़ाइस द जादूगर पवतन की। दिलावेज दिलावेज जादूगरों की बस्ती में, इसका जो है मतलब है। तो नज़म में अगर तरन्नुम में सुना दूँ तो हाँ, द ख़ाइस द जादूगरों पवतन के, कात सालिदा द दिलबरो पवतन के, द ख़ाइस द जादूगरों पवतन के, कात सालिदा द दिलबरो पवतन के। मुंगदज़र खबरियों बलताओ नकड़े, द उल्फत उल्फत खबरों पवतन के। मुंत्रे तोरे शून्य जल हमरा नगलू, मुंगते तोरे शून्य जल हमरा नगलू, ना मुहाल द गुरु गुरु पवतन के। अदागाने मुदिबन पवन तड़ली, द वतन द ज़ोरवरो पवतन के। खादे निश्ता द तंबलुनो आवाज निश्ता, खादे निश्ता द तंबलुनो आवाज निश्ता, द तंबलुनो संदरो पवतन के। नदिदन श्तन दमिने सितम गरिश्ता, द हसीनो सितम गरो पवतन के। शुक्रिया। नास पचा बांध बनास कवि दमिने, नास पचा बांध बनास कवि दमिने, द बेदर्दो बे बावरो पवतन के। कात साली ददा दिलबरो पवतन
مونږ د زړه خبر یو بل ته ونه کړې دا محال د ګورګورو په وطن کې. ترجمہ نصیر صاحب محترم. توجہ چاہتی ہوں نصیر صاحب محترم. دلاویز جادوگروں کی بستی میں قحط سالی کا دور دورہ ہے دلبروں کی بستی میں. ہم نے ایک دوسرے کو دل کا حال نہیں بتایا. اس وطن میں بھی جہاں خوبصورت اور مؤثر مکالمہ جاری تھا ہمارے لب وہاں بھی رنگوں سے محروم رہے جہاں پل اپنے ذائقے ہونٹوں پر نقش کرتے رہتے ہیں. زوراور لوگوں کی دہشت کے زیر اثر محبت کی ادائیں محصور و مقید ہو کر رہ گئی ہیں. شہنائیاں اور ڈول خاموش اور بے صدا ہیں اس وطن میں جہاں نغمات کی فراوانی ہے. نہ محبت میں ستم ڈانے والے موجود ہیں نہ ہی ملاقات کی رسم ہے. اس سرزمین میں جہاں حسین ستمگر رہائش پذیر ہیں. نازیہ محبت کے معاملے میں کس پہ ناز کری. اس وطن میں جہاں اعتبار کی جڑیں کٹ چکی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ نازیہ. اور ہم بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں. جو شاعر یہاں تشریف لائیں گے وہ ہیں جنید غنی راجہ. پٹھواری لکھتے ہیں اور خوبصورت لکھتے ہیں. پٹھواری بہت میٹھی زبان ہے اور جو لہجہ ہے ان کا وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں زبان کا ہے اور کچھ نہیں. یہاں انڈس کلچرل فورم میں جو لوگ اپنی مادری زبان میں لکھ رہے ہیں ہم ان کو ان کی مادری زبان کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. ہمارے لیے ساری مادری زبانیں قابل احترام ہیں اور ہم سارے دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو ایک لفظ بھی لکھتا ہے اپنی مادری زبان میں اس کی محبت ہے. جناب جنید غنی راجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب صدر کی اجازت سے میں پٹھواری نہیں کہ غزل ہی تسانے سامنے پیش کرساں. جی کتاب ہے جی ستواں بوا پٹھواری غزلانی اور 50 تو زائد اس نے غزلان اور زیادہ تو ویسے اس نے اگر تسا مطالعہ کرسو تو صوفیزم ہی تساں کی زیادہ مل سی. لیکن چونکہ ایک خوشی نہ اور مسرت والا دن ہے تو میں اج مجاز نے رنگ ایک غزل اپنی وہ پیش کرنا چاہسا تاکہ محبتاں جڑیاں نو بکھرن. عاشق دل بیمار کنی کہہ بئی گیسی. عاشق دل بیمار کنی کہہ بئی گیسی مکی تاڑا پیار کنی کہہ بئی گیسی. بہت شکریہ. عاشق دل بیمار کنی کہہ بئی گیسی مکی تاڑا پیار کنی کہہ بئی گیسی لک پتلا تے ٹور نوابی رنگ ہورا. لک پتلا تے ٹور نوابی رنگ ہورا اپروں اکھ تلوار کنی کہہ بئی گیسی تے مٹھے مٹھے بول رسیلے اوٹھاں تے مٹھے مٹھے بول رسیلے اوٹھاں تے اے مٹھی گفتار کنی کہہ بئی گیسی اور کنی مندر گل وچ گانی اف اللہ. کنی مندر گل وچ گانی اف اللہ نتھلی نی لشکار کنی کہہ بئی گیسی نتھلی نی لشکار کنی کہہ بئی گیسی اور پھلاں نی خوشبو تے چنگی بہوں لگنی. پھلاں نی خوشبو تے چنگی بہوں لگنی پڑیا جے ایک خار کنی کہہ بئی گیسی پڑیا جے ایک خار کنی کہہ بئی گیسی اور چلسی یار نمانا دل اس نے نخرے. چلسی یار نمانا دل اس نے نخرے ہک اسنا انکار کنی کہہ بئی گیسی اور نگدو نگدی سودا پار بنانا نی. نگدو نگدی سودا پار بنانا نی روزہ نائے دار کنی کہہ بئی گیسی تے مس مس کرنی اکھیاں نال اشارے بھی.
ਮੁਸ ਮੁਸ ਕਰਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ, ਰਾਹ ਜੁਲਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕਿਨੀ ਕਹਿ ਬਈ ਗੈਸੀ, ਤੈ ਦਿਲ ਤੈ ਢੋਲ ਬਜਾਣਾ ਉਸकी ਤਖੀ ਕਹਿ, दिल तय ढोल बजाना उसकी तखी कह, दिल की उसना वार किनी कह बई गैसी, चोट जुने दिलैनी झल्ली किंसा पर, चोट जुने दिलैनी झल्ली किंसा पर, उसना नी सरकार किनी कह बई गैसी, उसना नी सरकार किनी कह बई गैसी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगी साबिया सांगी सिंध से खूबसूरत शायरा। इनकी शायरी की किताब है खामोशी गालहाए थी। इसका मतलब मेरे ख्याल में कि शायद खामोशी बोल रही है। इनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पे आकर अपनी किताब के बारे में मुख्तसर बताएं और हमें अपनी शायरी सुनाएं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त से पहले तारीफ़ पेश करूँगी, फिर कुछ शायरी में से। ये मेरी किताब खामोशी गहलाई थी। इसका मकसद है खामोशी बोलती है। इससे पहले मेरी एक किताब आई थी 2007 में और बहुत वक्फ़ा हुआ, एंड उसके बाद ये जो मेरी पहली किताब आई थी उसका नाम था अञा कायनात जियरिया है, यानी कायनात अभी तक ज़िंदा है। और बहुत वक्फ़ा हो गया, तकरीबन 3 दिहाइयों से मैं लिख रही हूँ। और ये जो वक्फ़ा हुआ है उसके बाद ये 2024 में मेरी किताब आई है। इस किताब में क्या है? इस किताब में बहुत से रंग हैं और वही कुछ है जो ज़िंदगी में है, जो कायनात ने हमें दिए हैं, दुनिया वालों ने दिए हैं। तो इसमें कुछ दुख सुख हैं, दिल के भी, धरती के भी, कुछ ख्वाब हैं जो मेरे भी हैं और धरती के भी हैं। और इसमें धनक के रंग भी हैं, फूल भी हैं, चांद भी हैं, सितारे भी हैं। तो उदासी भी है इस किताब में। इस किताब में उदासी के साथ उम्मीद भी है, मायूसी भी है, खामोशी भी है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी की खामोशी, और खामोशी बोलती है। इसी में से इजाज़त है आपकी, जिसमें ये मैंने किताब का नाम है वही एक वाई है। वाई सिंधी अगरि हिते वेठा आहिनि त सिंधी असांजी वाईअ जी सिन्फ़ आहे। उन में मूं लिखियो आहे, आऊं त चुप आहियां, आऊं त चुप आहियां, हा पर हीअ मुंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। मैं तो चुप हूँ फिर भी मेरी खामोशी बोलती है। आऊं त चुप आहियां, हा पर हीअ मुंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। चुप चुपात चो तरफ़, चुप चुपात चो तरफ़, पोइ हीअ कंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। ॻोल्हियां हूअ किथे आहे, ॻोल्हियां हूअ किथे आहे, हाणे हीअ जंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। जंहिंजी दाह दॿाई वई, जंहिंजी दाह दॿाई वई, हाउ अॼु तंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। आऊं त चुप आहियां, पोइ हीअ कंहिंजी खामोशी ॻाल्हाए थी। महिरबानी। इजाज़त है कुछ और पढ़ने की, या यहाँ बस ख़त्म कर दें? तर्जुमा बता दूँ इसका। मैं तो चुप हूँ फिर भी ये किसकी खामोशी बात कर रही है। खामोशी है हर तरफ, खामोशी है हर तरफ, फिर ये किसकी खामोशी बोल रही है। ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है, ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है, अब यहाँ जिसकी खामोशी बोल रही है। जिसकी आह दबाई गई, जिसकी आह दबाई गई, हाँ अब उसकी खामोशी
बोल रही है, मैं तो चुप हूँ, फिर ये किसकी खामोशी बोल रही है। थैंक यू। एक और नज़्म पढ़ना चाहूँगी मैं। नज़्म में तो उसका थोड़ा सा सिंधी पढ़ के उर्दू में पढ़ दूँगी। नसरी नज़्म है, इंसान दोस्ती। क्या सरमा गर्मी से, सिंधीअ में असांजो, छा सियारो उन्हारे सां, उन्हारो सर सां, सर बहार सां हसद करे थो। छा राति ॾींहं जे उजाले सां सड़े थी, ऐं नदी समुंड जे लाइ को कीनो पाले थी। जे न ते इंसान तूं बि फितरत खां जीअण सिख। अब इसका जो उर्दू तर्जुमा है, क्या सर्दियाँ गर्मियों से कहूँ अगर, या मैं ये कहूँ कि क्या सरमा सावन से, सावन खिज़ां से, और खिज़ां बहार से हसद करती है। क्या रात दिन के उजालों से जलती है, और नदी समंदर के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पालती है। अगर नहीं तो इंसान तुम भी फितरत से जीना सीखो। हमारे साथ एक नौजवान शायर मौजूद हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब बिस्मिल नदीम। बराहवी में लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है विदार। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी किताब का तारुफ भी पेश करें और फिर हमें कुछ बराहवी में सुनाएं। जनाब बिस्मिल नदीम नौजवान शायर हैं, इनकी भरपूर हौसला अफजाई कीजिएगा। इन लोगों ने कल संभालना है अदब का स्टेज, तो इनकी भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी तमाम मेंबर्स का, बहुत शुक्रिया। मेरा मजमूआ पहली मजमूआ है जो कि मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मजमूआ का नाम विदार है। तो शायरी बराबरी में ही करते हैं हम लोग। तो शायरी की तरफ आते हैं। लिखा है, बरमरे ने या कुर्बान तवकले, बरमरे ने या कुर्बान तवकले, तवकले बस दा सजाना तवकले। बर के ठुए नन ज़मीर आते थे ना, बर के ठुए नन ज़मीर आते थे ना, नन अगे के वल्द खाचान तवकले। बर के इस्तारी रवानो संगताक, बस बर के इस्तारी रवानो संगताक, अल्पनैनन दा सतुंगान तवकले। डे अना ख्वानिन नमाज़े चिल्तनट, चिल्तन वहाँ पे पहाड़े। डे अना ख्वानिन नमाज़े चिल्तनट, गुलगुला भटके ना आज़ान तवकले। अरगमे नन जिंदना मुंते सुनुन, अरगमे नन जिंदना मुंते सुनुन, खतनुन नए के ना हरमान तवकले। यार बिस्मिल्लाह इलाज उठपनना, यार बिस्मिल्लाह इलाज उठपनना, दाद नट के न दरमान तवकले। तो तर्जुमा हमें तो आज ही पता चला, तर्जुमा खास की नहीं है। तो एक उर्दू की चार अशार सुनाती है आप लोगों को। लिखा है उर्दू में कि ज़िंदगी तुमको सजाने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी तुमको सजाने की ज़रूरत क्या है, फ़ानी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। खाके हो जाएंगी जब सांस चली जाएगी, खाके हो जाएंगी जब सांस चली जाएगी, बस में और पिलाने की ज़रूरत क्या है। बस यही लिखा था। बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छे बिस्मिल नदीम, बहुत अच्छे। आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए। अब चलते हैं जी पहाड़ी की तरफ। दरख्वास्त गुजार हूँ अली अहमद कियानी से। इनकी हाल ही में किताब शाया हुई है, सहरा सहरा रुलियाँ अखीं। क्या खूबसूरत लिखते हैं।
غزل بھی لکھتے ہیں, نظم لکھتے ہیں, نثر لکھتے ہیں. علی احمد کیانی سے درخواست گزار ہوں کہ تھوڑا سا کتاب کا تعارف اور کلام بھی عنایت کریں. علی احمد کیانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار, معزز مہمانان گرامی, ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے مادری زبانوں کے عظیم شعراء کرام, مصنفین اور منتظمین, السلام علیکم. صحرا صحرا رلیاں اکھیں, یہ غزلیات کا مجموعہ ہے اور یہ پہاڑی زبان میں ہے. پہاڑی زبان میں غزل کی جو روایت ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے. عہد حاضر میں چند احباب اس میں طبع آزمائی کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی وسائل کو بروئے کار لا کر پہاڑی زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں, جن میں پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب ہیں, راشد عباسی صاحب ہیں, شکیل آوان صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد صغیر خان ہیں اور ممتاز غزنی ہیں. میں بھی چونکہ غزل کا شاعر ہوں تو کوشش یہی کی ہے کہ پہاڑی زبان میں معیاری غزل کو رواج دیا جا سکے. ایک غزل کے چند اشعار جو اس کتاب کی ٹائٹل غزل ہے. دکھ تے غم وچ کھلیاں اکھیں, دکھ تے غم وچ کھلیاں اکھیں, رونا کدیو پلیاں اکھیں. دکھ تے غم وچ کھلیاں اکھیں, رونا کدیو پلیاں اکھیں, اور کون سا اتھرو کسنے والا, کون سا اتھرو کسنے والا, اج وی راتی ڈلیاں اکھیں. کون سا اتھرو کسے, کون سا اتھرو کسنے والا, اج وی راتی ڈلیاں اکھیں. ایک پاسے دی ساری دنیا, ایک پاسے دی ساری دنیا, ایک پاسے یو کلیاں اکھیں. اور ایک لیلا نے عشقے وچ یو, ایک لیلا نے عشقے وچ یو, صحرا صحرا رلیاں اکھیں. ایک لیلا نے عشقے وچ یو, صحرا صحرا رلیاں اکھیں. یار علی نہ اچھی بسیا, یار علی نہ اچھی بسیا, رہیاں کلیاں ملیاں اکھیں. یار علی نہ اچھی بسیا, رہیاں کلیاں ملیاں اکھیں. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. اکھیں نال شکار کرے او, اکھیں نال شکار کرے او, تیر دلے نے پار کرے او. بوئے اگیں لنگے جسلے, بوئے اگیں لنگے جسلے, جانی تے کھڑکار کرے او. سر موسیقی نے کھنڈرائے, سر موسیقی نے کھنڈرائے, بنگے نی چھنکار کرے او. اسنا ایک لشکارا ہونا, اسنا ایک لشکارا ہونا, ماڑے دل نہ چارا ہونا. اسنا ایک لشکارا ہونا, ماڑے دل نہ چارا ہونا. جگنو نی بھی لودی منیا, جگنو نی بھی لودی منیا, لیکن تارا تارا ہونا. جگنو نی بھی لودی منیا, لیکن تارا تارا ہونا. حق تے سچ نے رستے اندر, حق تے سچ نے رستے اندر, دلدل ہونی گارا ہونا. ماڑے اتھرو پانی سنگیو, ماڑے اتھرو پانی سنگیو, اسنا اتھرو تارا ہونا. اسنی بستی چھوڑی بھی تے,
उसनी बस्ती छोड़ा भी तै माड़ा खान गुजारा होना, उसना एक लश्कारा होना, माड़े दिल ना चारा होना। बहुत बहुत शुक्रिया। रोक पे बैठे पंछी की सुन, हरियाणवी ज़ुबान में अनवर अली राना साहब की शेरी मजमुआ है जो कतर से तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई और इस वजह से वो नहीं आ सके। हमारे साथ हॉल में उनके भाई मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि आके उनके कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ सदर की इजाज़त से, एक तो ये किताब जो है हरियाणवी ज़ुबान में हमारा जो रिटन लिटरेचर है उस पे काम जो है थोड़ा देर से शुरू हुआ है, शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका जो सीना बसीना लिटरेचर है वो बहुत पुराना है। ये किताब जो है रूख पे बैठे पंछी की सुन, ये जो किताब है ना ये खुद बता रही है जिस तरह की हमारा पैगाम है कि मादरी ज़बानें जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो ये बता रहा है कि जो परिंदा है वो जो दरख्त पे बैठा है उसकी आप सुने कि वो देखें, बुलबुल जो है वो चहचहा रहा है, कौवा कैं कैं करता है, और जो है चिड़िया अपने गीत गा रही है, लेकिन वो अपनी ज़बान नहीं छोड़ती। तो उसी को लेके ये बात आई है। अब इसके टाइटल जो है ना, टाइटल से ही कि राग पराए गावे भाई, राग पराए गावे भाई, माँ बोली बिसरावे भाई। राग पराए गावे भाई, माँ बोली बिसरावे भाई, रूख पे बैठे पंछी की सुन, रूख पे बैठे पंछी की सुन, के बाणी बतलावे भाई। बानी कहते हैं हरियाणवी में बातचीत। परदेसिया में अपनी बोली, बोलनिया कित पावे भाई, अनवर भी हरियाणवी रंग में, रचना जोड़ सुनावे भाई। इसके बाद एक और में, जय ठाडे ते यारी हो जे, जे ठाडे ते यारी हो जे, हल्का आपे भारी हो जे। जे ठाडे ते यारी हो जे, हल्का आपे भारी हो जे, बखत बिगड़ जे जद मानस का, बखत बिगड़ जे जद मानस का, डींग बरण भी भारी हो जे। डींग हरियाणवी में कदम के कदम, बखत बिगड़ जे जद मानस का, डींग बरण भी भारी हो जे। भाई रलके जे ना चाखें, भाई रलके जे ना चाखें, घर की खांड भी खारी हो जे। सर पे पाग जे भाई धर दें, अनवर की सरदारी हो जे। एक चीज तो क्योंकि हमारी जो शायरी है ना इसमें ज्यादातर मादरी जुबान को ही प्रमोट करने का उसमें है। हाँ, अपना कल्चर रीत पुरानी कौन बतावेगा, अपना कल्चर रीत पुरानी कौन बतावेगा, परदेसा में देश कहानी कौन बतावेगा। घोड़े बेच के सोवन वाले उस दिन के राजे ने, घोड़े बेच के सोवन वाले उस दिन के राजे ने, के कैसे यो रात की रानी कौन बतावेगा। किसते पूछूं नाम पता उस निर्मल झूले का, नहीं पांदा कोई हान दीवानी कौन बतावेगा। बहुत शुक्रिया जी। पशुंड मोहरो लेमो किद्व गोयान ओख के, पशुंड मोहरो लेमो किद्व गोयान ओख के, द मोहब्बत दे न सिवा वजाहत से के देशी। डॉक्टर अताउर रहमान अता साहब, चेयरमैन पश्तो डिपार्टमेंट जानजेब कॉलेज स्वात, दर्जन भर किताबों के खालिक, इनके शेरी मजमूए का नाम है लपा लवंग। आपसे इल्तिमास है कि स्टेज पे आएँ और हमें अपना मुख्तसर किताब के हवाले से तारुफ और शायरी सुनाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको सलाम और मोहब्बत है।
مجلس صدارت کی اجازت سے یہ شعری مجموعہ ہے جو 2024 میں چھپا ہے. نام ہے اس کا لپا لونگ. پشتو اور اردو میں تھوڑا سا تلفظ کا اختلاف ہے. اردو میں لونگ بولا جاتا ہے اور پشتو میں ہم اسے لونگ کہتے ہیں. تو دراصل یہ سنسکرت سے لیا گیا لفظ ہے، لیکن لونگ کے ساتھ ہمارا ایک انس ہے، ذائقے کے حوالے سے، اس کی خوشبو کے حوالے سے، اور پھر پشتونوں کی نفسیات کے ساتھ اور پشتو فولکلور کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط ہے. لونگ کا جو ہار بنتا ہے عورتیں پہنا کرتی تھی، لونگین سے پشتو میں بولتے ہیں ہم، تو پشتو ٹپوں میں لونگین کا بہت ذکر ہم سنتے آ رہے ہیں. تو یہی سے انعام میں نے لیا ہے. چلو بر لونگ مطلب یہی بنتا ہے، چلو بر لونگ. اس میں غزلیں ہیں، پابند نظمیں ہیں، آزاد نظمیں ہیں، معرہ نظمیں ہیں اور چند گیت ہے. موضوعات کے لحاظ سے پشتو کی جو شاعری کے آج کل کے جتنے موضوعات ہیں یہی موضوعات ہے. رومان ہے، عشق ہے، جمال ہے، مزاحمت کا تھوڑا سا رنگ ہے اور قوم پرستی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ویسے بھی لوگ سنا کے جا رہے ہیں اور مشاعرہ اس وقت مجھے کم از کم نہیں لگ رہا. ہم پشتو میں بولتے ہیں کہ شاعر جائیداد نہیں مانگتے، داد مانگتے ہیں. اور تو میں غزل سناؤں گا آپ کو، پہلے پشتو میں اور پھر اردو میں منظوم ترجمہ اس کا سناؤں گا. سائل صاحب مطلع عرض ہے، د زړه د درد نه د فکرونو تر جهانه پورې، د زړه د درد نه د فکرونو تر جهانه پورې، زما قصه د جانانه تر جانانه پورې. پہلا شعر ہے، سوک نفرتونه خوروي سوک پکې مینه ویشي. سوک نفرتونه خوروي سوک پکې مینه ویشي، څومره تضاد دی د انسان نه تر انسانه پورې. او سائل سے یا د جانان فکر کی گرزم یا د ځان فکر کی، یا د جانان فکر کی گرزم یا د ځان فکر کی، زما الوتوی له اسمان نه تر اسمانه پورې. مهرباني جی، مهرباني جی. او شعر دی چې ما ځان ونه مونده، د ځان درک مې ونه مونده. ما ځان ونه مونده، د ځان درک مې ونه موندو، د عقل خار نه د جنون تر بیابانه پورې. او شعر دی چې افکار سے یا به شیبې وي د یادونو یا د اوښکو شیبې، یا به شیبې وي د یادونو یا د اوښکو شیبې، زما ژوندون دی له بارانه تر بارانه پورې. او شعر دی چې د ژوند قصه راته بیا بیا د سره کیږي اوړي، د ژوند قصه راته بیا بیا د سره کیږي اوړي، یو ګام مزل دی له خزان نه تر خزانه پورې. مقطع ہے کہ اتا داستان د مینی هر ساعت له خوند ډک دی، اتا داستان له مینی هر ساعت له خوند ډک دی، د زړه د خوږ درد نه د خوږ زړه تر درمانه پورې. ترجمہ ہے، ظاہر ہے ترجمہ منظوم زیادہ مشکل ہوتا ہے اور کسی ایک لفظ کے کسی ایک زبان کے روح کو دوسرے میں سمانا ناممکن ہوتا ہے. بہرحال رنجو علم دل سے تخیل کے جہاں تک، رنجو علم دل سے تخیل کے جہاں تک، قصہ میری ہستی کا ہے ساجن کے جہاں تک. شعر ہے کہ تلخی کی اشاعت کہیں تقسیم محبت، تلخی کی اشاعت کہیں تقسیم محبت، انسان میں آخر ہے تفریق کہاں تک. شعر ہے کہ پرتا ہوں غم یار میں
या अपने गमों में, परता हूं गमे यार में अपने गमों में, परवाज है मेरी ये गर्दू से समा तक। इदराक न अपना है नवाकिफ में खुदी से, इदराक न अपना है नवाकिफ में खुदी से, दानिश के नगर से किसी वैरान मका तक। शेर है कि बरखा कभी आदू की कभी अश्क की रिमझिम, बरखा कभी आदू की कभी अश्क की रिमझिम, ये जीस्त है बरसात से बारारे रवा तक। किस्सा मेरे हस्ती का पलटता है हर एक बार, किस्सा मेरी हस्ती का पलटता है हर एक बार, एक गाम की मंजिल है पतझड़ से खजा तक। और मकता है कि हर लहजा मोहब्बत का अता लुत्फ से भरपूर, हर लहजा मोहब्बत का अता लुत्फ से भरपूर, अफसुर्दगी दिल से मसीहाए दिला तक। शुक्रिया। मोहतरम जनाब सईद शारिक साहब को दावत देती हूँ कि आए स्टेज पे और हमें किताब के हवाले से जो इनका शेरी मजमुआ है मुख्तसर तारुफ और अपनी शायरी सुनाए तर्जुमे के साथ। सईद शारिक हमारे वो नौजवान शायर हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना एक ख़ास मकाम बनाया है। तो मैं सईद शारिक से कहूँगा कि कोहे मलाल के बारे में भी हमारे नाजरीन को बताएं, हाजरीन को बताएं, और फिर गज़ल भी ज़रूर हमें इनायत फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी ये दूसरी किताब है कोहे मलाल के नाम से। पहली किताब मेरी साया के नाम से 2017 में शाया हुई और उसको अहबाब की जानिब से और सीनियर्स शोरा और नाकिदीन की जानिब से काफ़ी पजीराई मिली और मेरी हौसला अफजाई हुई। इसी के नतीजे में फिर मेरा जो शेरी सफ़र है वो जारी व सारी रहा और तेज़ी से जारी रहा और फिर ये 2024 में मेरा मजमूआ कोहे मलाल के नाम से शाया हुआ। इसमें सिर्फ गज़लियात हैं। इसमें 160 सफ़ों की किताब है जिसमें कुल 102 गज़लें हैं और ज़्यादातर गज़लें ऐसी हैं जो 6-7 अशार पर मुश्तमिल हैं। और इस किताब में मैंने बुनियादी तौर पर अपने आप को इंसान को बतौर हस्ती समझने की कोशिश की है, वजूदी मसाइल को जिसमें तमाम वो मसाइल जिसके साथ आज का इंसान नबुर्द आज़मा है वो तमाम चीज़ें भी इसमें लाने की कोशिश की है। अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को भी समेटने की कोशिश की है, कायनात में अपने वजूद को और उसकी हैसियत को समझने की भी कोशिश की है। तो इस किताब में वो सब कुछ है जो हम महसूस करते हैं और शायद बयान नहीं कर पाते। कुछ ऐसे तजुर्बात भी होंगे जिससे आप शायद सब गुजरते हों। बहरहाल ये किताब जब कोई कारी पढ़ेगा और उसको बगौर पढ़ेगा तो फिर बेहतर तौर पर समझ पाएगा। ज़ाहिर है कि इसको चंद लफ्ज़ों में अपने बारे में बताना वैसे भी मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं अपनी किताब पर, अपने फ़न पर बात करूं। चंद अशार इसी किताब से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मेरी पहली किताब थी साया, उसको 3 अवार्ड्स मिले थे। एक उसको अवार्ड मिला था परवीन शाकिर ट्रस्ट की जानिब से अक्स खुशबू परवीन शाकिर अवार्ड। इसी तरह बाबा गुरु नानक जी अदबी अवार्ड मिला था और एक पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक अवार्ड मिला था। ये जो कोहे मलाल है जो चंद माह पहले शाया हुई है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से 2024 के बेहतरीन उर्दू शेरी मजमूए का एजाज़ मिला है और ये मेरे लिए बहुत खुशाइन भी और बहुत हौसला अफजा बात है कि किसी भी तख्लीकार के लिए बहुत अहम होता है कि उसकी तख्लीकात को जो अदब को समझने वाले लोग हैं वो किस नज़र से देखते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका भी कि आपने मुझे मौका दिया और उन तमाम अहबाब का भी जिन्होंने अवार्ड्स के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। अब हस्बे रवायत चंद अशार अपनी किताब से पेश करना चाहूँगा। पहले तो वो 2 शेर जो इस किताब का उन्वान जिससे लिया गया है कि खुद ब खुद जमती हुई काई से डर लगता था, खुद ब खुद जमती हुई काई से डर लगता था, पहले पहले मुझे तन्हाई से डर लगता था, पहले पहले मुझे तन्हाई से डर लगता था, देख आ पहुंचा हूं किस तरह सरे कोहे मलाल,
دیکھ آ پہنچا ہوں کس طرح سرے کوہ ملال، میں وہی ہوں جسے اونچائی سے ڈر لگتا تھا. بہت شکریہ. اور خوش ہوں کہ بہرحال خلا رہتا ہے مجھ میں، خوش ہوں کہ بہرحال خلا رہتا ہے مجھ میں، اور یہ بھی نکل جائے تو کیا رہتا ہے مجھ میں، اور یہ بھی نکل جائے تو کیا رہتا ہے مجھ میں. قابو میں نہ آتا تھا کبھی جو دل وحشی، قابو میں نہ آتا تھا کبھی جو دل وحشی، اب یاد کی رسی سے بندھا رہتا ہے مجھ میں، اور وہ صفحہ خالی ہوں جو اندر سے بھرا ہے، وہ صفحہ خالی ہوں جو اندر سے بھرا ہے، جو لفظ بھی مٹتا ہے لکھا رہتا ہے مجھ میں. بہت شکریہ. اور دو چار اشعار اور کہ چوری چھپے جو ملتی رہی برملا ملی، تنہائی ایک دن مجھے محفل میں آ ملی، چوری چھپے جو ملتی رہی برملا ملی، تنہائی ایک دن مجھے محفل میں آ ملی. ہم دو تھے اور ایک نشست ملال تھی، ہم دو تھے اور ایک نشست ملال تھی، وہ اٹھ کے چل دیا تو مجھے بھی جگہ ملی، وہ اٹھ کے چل دیا تو مجھے بھی جگہ ملی. رہنے دے دشتے دل میں کہیں اور مت لگا، رہنے دے دشتے دل میں کہیں اور مت لگا، مرجھا نہ جاؤں گر نئی آب و ہوا ملی. بہت شکریہ. بہت ہی زبردست کلام سنا ہے. میں اس کی خاموشی کو سن رہی تھی، وہ اظہار محبت کر رہا تھا. محترمہ رخشندہ نوید صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں. شاعری بھی کرتی ہیں، بچوں کا ادب بھی تخلیق کرتی ہیں. آپ سے التماس ہے کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے کتاب کے بارے میں مختصر تعارف اور شاعری سنائیں. آپ کی درخواست پر ہم نے آپ کو آخر میں رکھا ہوا تھا، لیکن کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو ان کی حکم پہ ہم نے کہا ہے کہ آپ، لیکن اگر آپ بیٹھ سکیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اب چونکہ میں اسٹیج پر آئی گئی ہوں تو اپنا فرض ادا کرنے دیں مجھے. جی یہ میری 7ویں کتاب شائع ہوئی ہے، شاعری کی کتاب ہے، اردو شاعری کی کتاب ہے، اور اس میں صرف غزلیں ہیں. اس کا نام ہے رات مجھے اچھی لگتی ہے. ابھی اکتوبر 2024 میں یہ چھپی ہے، اور اس کے بارے میں مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب تک خود کتاب نہ پڑھیں آپ کو حقیقت عیاں نہیں ہوتی. بہرحال میں اس میں سے ایک یا دو کوئی غزلیں سنا دوں گی تو مے بی یو کم ٹو نو کہ میں کیا لکھتی ہوں. تو پہلے ایک نظم سے آغاز کرنے لگی ہوں. نظم کا عنوان ہے کشف ذات. آغاز میں دوسری کتابوں سے کچھ سناؤں گی، اس کے بعد آخر میں اس کتاب سے. کشف ذات. نہ جانے ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کیوں ہے، نہ جانے ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کیوں ہے کہ شاعری کے سوا اور مشغلہ کیا ہے. نہ جانے ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کیوں ہے کہ شاعری کے سوا اور مشغلہ کیا ہے. یہی سوال ہر ایک شخص کرتا رہتا ہے کہ روز و شب کے گزرنے کا سلسلہ کیا ہے. یہی سوال ہر ایک شخص کرتا رہتا ہے کہ روز و شب کے گزرنے کا سلسلہ کیا ہے. میں پوری اتروں کسی کی نگاہ میں کیسے، میرا ہی آئینہ خود جھوٹ منہ پہ بولے گا. یہ ذات بھی تو کبھی منعکس نہیں ہوتی، تماشا گاہ میں کب دل بھی زخم کھولے گا.
मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊं वजूद के टुकड़े, मगर ज़माना मेरी नब्ज़ क्या टटोलेगा। मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊं वजूद के टुकड़े, मगर ज़माना मेरी नब्ज़ क्या टटोलेगा। सो सातों के उलझते हुए सवालों से कमाल इतना है दामन बचाए फिरती हूँ। मैं शायरी के सिवा और कुछ नहीं करती, मैं अपने कांधों पे खुद को उठाए फिरती हूँ। मैं शायरी के सिवा और कुछ नहीं करती, मैं अपने कांधों पे खुद को उठाए फिरती हूँ। एक और नज़्म के चंद अशार पेश करती हूँ, एक नज़्म पेश करती हूँ। ज़रा सा घर बड़ा ले लो, ज़रा सा घर बड़ा ले लो, खबर कुछ भी नहीं होती किसी अनजान साथ की। खुदा ना खास्ता अगर यूं ही एक दिन मैं गुज़र जाऊं जहां से, तो इतने लोग, इतने सारे लोग इस सहन में कैसे समाएंगे। पता मेरा कहीं से पूछते सब मर्दो जन, पीरो जवां शनासा अजनबी चेहरे। मेरे बचपन से लेकर आज तक के दोस्तों की टोलियां, हम जोलियां, मेरे कुछ मिलने वाले और मेरे कुछ जानने वाले, हजारों चाहने वाले, सभी आना तो चाहेंगे। किसी से मुख्तसर हो या के दैरीना, वो रिश्ता तो निभाएंगे, सभी आना तो चाहेंगे। ज़रा सा घर बड़ा ले लो, ये मुझसे मुंसलिक एक आखिरी तकरीब होगी। अब इसके वास्ते एक हॉल तो बुक हो नहीं सकता, ज़रा सा घर बड़ा ले लो। शुक्रिया। मैं बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा सा काम करती हूँ और मेरी अभी बिल्कुल हाल ही में चंद रोज़ पहले बच्चों की नज़मों पर मुनहसर एक मुश्तमिल किताब छपी है नेशनल बुक फाउंडेशन से। अगर इजाज़त हो तो उसमें से एक नज़्म मैं नमूने के तौर पे आपको पेश कर देती हूँ। ये नज़्म उस बच्ची के लिए लिखी गई है कि जो अभी दुनिया में जिसका जन्म नहीं हुआ और उसका ख्वाब देखा जा रहा है। ये बच्ची के लिए लिखी गई नज़्म है। कोमलता। कोमलता तू कैसी होगी, कोमलता तू कैसी होगी, चांदनी जैसी उजली उजली पानी सी शफाफ। कोमलता तू कैसी होगी, रंगा रंग रंगोली, नर्म मुलायम सांस से बढ़कर होगा रूप स्वरूप। आँख तेरी खुलने से पहले निखरे, आँख तेरी खुलने से निखरेगी दुनिया की धूप। कोमलता तू कैसी होगी, कैसी तेरी खुशबू, खुशबू तेरी धीमी होगी या फिर होगी तेज, धीरे धीरे भागने वाली या हंगामा खेज। बारिश की छन छन के जैसी, बारिश के छन छन के जैसी होगी तेरी थाप। पूरा होगा सात सुरों का अनमिट एक मिलाप। कोमलता तू कैसी होगी, भूरी नीली आंखें, भूरी नीली आंखें होंगी, सुंदर काले बाल। मुस्काते तेरे होंठ हमेशा सूरज जैसे गाल, और पोरों से पैरों तक होगी मक्खन दूध से ताज़ी। छूकर देखने वाले होंगे तेरे हाथ प्याजी। कोमलता तू कैसी होगी, चेहरा फूल गुलाब, सबने तेरे खिल उठने के देखे कितने ख्वाब। कोमलता बादल का बाजा नील गगन पर बोले, जब तू इस धरती पर उतरे पंख सुनहरी खोले। कोमलता तेरे गिर्द रहेंगे परियों के कुछ गौल, उमड़ेगी खलकत के देखें कली खिली अनमोल। कोमलता तेरी राह तके है चंचल सा एक दौर, हाथ उठाए खड़ा हुआ है पूरा शहर लाहौर। हाथ उठाए खड़ा हुआ है
पूरा शहर लाहौर। और गज़ल पेश है उर्दू की। रखा न दी का मेरी दुनियादारियों ने मुझे, रखा न दी का मेरी दुनियादारियों ने मुझे, असीर कर दिया इन रुस्तगारियों ने मुझे। और हर एक सांस पे उसको पुकारा शिद्दत से, तो जिंदा रखा मेरी आहो जारियों ने मुझे। और मैं रेजा रेजा मोहब्बत को जोड़ने में रही, न जमा होने दिया रेजगारियों ने मुझे। और शेर पेश है कि मैं वरना दश्त कहाँ पार करने वाली थी, मैं वरना दश्त कहाँ पार करने वाली थी, ये दश्त पार कराया शिकारियों ने मुझे। मैं वरना दश्त कहाँ पार करने वाली थी, ये दश्त पार कराया शिकारियों ने मुझे। और थे ईस्तादा हर एक सू मुसाफिराने फिराक, सो बढ़ के रोक लिया था सवारियों ने मुझे, सो बढ़ के रोक लिया था सवारियों ने मुझे। और मैं ढूंढती रही माबद में खुद को रक्षंदा, जुए में हार दिया था जवारियों ने मुझे। मैं ढूंढती रही माबद में खुद को रक्षंदा, जुए में हार दिया था जवारियों ने मुझे। और ये इस किताब की एक गज़ल मैं अब पेश करने लगी हूँ कि रोज़ाना उस राह पे जाना पड़ता है, रोज़ाना उस राह पे जाना पड़ता है, एक इलाका उधर पुराना पड़ता है, एक इलाका उधर पुराना पड़ता है। और साथ की कुर्सी पर बैठे ए प्यारे शख्स, साथ की कुर्सी पर बैठे ए प्यारे शख्स, तेरे मेरे बीच ज़माना पड़ता है, तेरे मेरे बीच ज़माना पड़ता है। और सुखनवरों की मजबूरी है रक्षंदा, सुखनवरों की मजबूरी है रक्षंदा, उनको एक महबूब दिखाना पड़ता है। सुखनवरों की मजबूरी है रक्षंदा, उनको एक महबूब दिखाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रक्षंदा नवीद साहिबा। और वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है, तो अब फिर चलते हैं पटवारी की तरफ। दरख्वास्त करूंगा प्यारे दोस्त जवाद इकबाल से, जिनकी हाल ही में किताब शाया हुई है दरवटनी, तो अगर वो हाल में मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएं। जवाद इकबाल। هغه افکار ستا تصور د خایست، هغه افکار ستا تصور د خایست، پردي خارونه پر آباد ښکاري. محترم اقبال حسین افکار صاحب، محترم اقبال حسین افکار صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور اسٹیج پر اپنے شعری مجموعے جس کا نام ہے دردن و نغمگر، محترم افکار صاحب کے اب تک 10 کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں سے 2 اردو شعری مجموعے ہیں اور 8 نثری. تو برائے مہربانی التماس ہے کہ آپ سٹیج پر آئیں اور ہمیں سنائیں اپنے شعری مجموعے سے کلام اور ترجمہ. صاحب صدر پریزیڈیم کے محترم اور آپ سبوں کو سلام. سب سے پہلے تو انڈس کلچر فورم دوستوں کو مبارکباد کہ 10ویں میلہ مادری زبانوں کو سجایا اور ہمیں بھی اس میں موقع دیا گزشتہ کی طرح. یہ میرا نظموں کا مجموعہ ہے دردن و نغمگر، اور اس میں نظمیں ہے 2007 سے لے کر 2024 تک.
اور جو آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پختون بیلٹ میں اور خصوصاً پاکستان میں جو حالات ہے زیادہ تر اس پہ اس موضوعات ہے جو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب نے بتایا وہ سب اس میں ہے، اور نظمیں کچھ آزاد ہے آزاد معرا ہے، کچھ پابند ہے اور کچھ گیت ہے۔ میں آپ کے سماعتوں کو ایک موضوع ہے ٹرانسجینڈر کا۔ ڈولفن ایان ہمارے ہاں ایک وہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کا اب تعلیم یافتہ انجینئر ہے، تو اس پہ وہ لکھے، لیکن یہ سب ٹرانسجینڈر کے لیے ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ بہت ستا کی صد جوندانا گل ڈیر دترخا تپے کرد درد و غم یہ میں نہ پسنم ستا جذبات و احساسات ارمانونا خواہشات ډیر سپیڅلي او ښاغلي ستا ژوندون خو آینه دی د ځنګل د دې ټولنې ډیر خفه په رویه شم د ټولنې زه اشنا ته آیانه ښکلې ځوانې د انسان ته قدردانې ستا جمال د رب جمال ستا کمال د رب جلال هغه واړه نظرونه چې کاږه تا ته درګوري هغه سپک د سپکو ډک چې په سپکه د یادۍ څوک ته خپوی په تقدس فرشته د خور او ورور هم د مور او هم د پلار د ټولنې د خپل یار خو زړه ستا دی ناکلار د خپل کور او د کوډلې او د مینې د نظر زمونږ زړه کې په سینه کې د ګوګل په یو خانه کې نه خو مینه شته نه درد نه خوږلد مو په نظر کې نه الوت مو په نظر کې نه مو عقل شته په سر کې د درد شلیکه پر هر کې او مونږ نه یو انسانان د انسان څنګه قدردان یو حیوان بل شرمخان۔ یہ ترجمہ میرے پروفیسر نوید جوان نے کیا ہے۔ تیری زندگی کے داستان بڑی تلخ ہے اے میری جان، یوں ہے پے کرے درد و غم، تجھے پیارا ہے اپنا صنم، تیرے جذبے اور احساسات، تیرے ارماں اور خواہشات بڑے قدرداں بڑے محترم، تیری زندگی تو ہے آئینہ اس حیوان نما نظام کا، میں خفا بہت ان رویوں پر اس سماج کے میرے ہم سفر، اے آیان تو جواں ہے ہر انسان کا تو قدردان ہے تیرا جمال الہی، ہے تیرا جلال الہی، مگر وہ نظر تمام تر جو تجھے سمجھے ہیں کم تر، تو تقدس پر ہے خبر، رشتے بہن بھائی مدر پدر، اور تیرا دل پھر بھی ہے بے قرار، ڈھونڈے اس سماج میں اپنا یار، پر ہمارے دل اور سینے میں اس کپس کے بند خانے میں نہ ہے پیار تیرے لیے اور نہ درد۔ بند خانے میں نہ ہے پیار تیرے لیے اور نہ درد، نہ ہے محترم کوئی بھی نظر، یہاں عقل سے خالی ہر ایک سر، یہاں عقل سے خالی ہر ایک سر، یہ سارے کہاں ہے انسان، بنے کیسے انسان کے قدردان، کوئی حیوان ہے کوئی شیطان، تیری زندگی کے داستان اور بڑی تلخ ہے اے میری جان۔ شکریہ۔ پھر چلتے ہیں جی پوٹھواری کی طرف۔ ہمارے پیارے دوست شاہد لطیف ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی حال ہی میں کتاب شائع ہوئی ہے ترٹنے سا، ان سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں اور تھوڑا سا ترٹنے سا کا تعارف اور ایک غزل عنایت فرمائیں۔ جناب شاہد لطیف ہاشمی۔
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं इंडस कल्चरल फोरम और PNCA का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत अदबी महफिल सजाई है, बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिले हैं। और राशिद अब्बासी साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत शुरा को मदऊ किया यहाँ पे और बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो मिला। मैंने पटवारी में 8 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं, जिसमें अफसानचे भी हैं, अफसाने भी हैं, कालम भी हैं, शायरी भी है, नज़में भी हैं। और ये किताब जो है ये 9वीं किताब है जो कि माइयों पर मुश्तमिल है। इसमें माइये हैं, न सिर्फ माइये बल्कि समझें कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो हमारे समाजी रवैयों की टूट फूट का जो शिकार है, हमारे समाजी रवैये उसकी अक्कासी करती हैं, इसीलिए इसका नाम त्रुटने सा रखा हुआ है। अच्छा, इसमें से 2-4 माइये मैं सुना कर फिर एक गज़ल पेश करूँगा जी। नफरतां उसलै बड़ियां, नफरतां उसलै बड़ियां, एक बेड़े ने विच कंधां जिसलै चढ़ियां। नफरतां उसलै बड़ियां, एक बेड़े ने विच कंधां जिसलै चढ़ियां, ते कवरां चुप चवीतियां, मिट्टी विचों कदै मिट्टी गल्लां कीतियां। पहले जो पुगे से, पहले जो पुगे से, मेरा ख्याल है हाल विच जिगने जागने बंदे बैठे हुए ना। पहले जो पुगे से, दिल फरोली का तके विचों अलुगे से। तो एक माइया और जी पेश कर सां, फिर एक गज़ल जनाब आली के सोचां विच धरे वे, सोचां विच धरे वे, हिल जुल करने नी ख्वाब अंदरों ठरे वे, ते लहू नाल लिखतां लिखियां, मैं ते कुछ ना सा उथों उजतां सिखियां। तो एक गज़ल ने चंद अशार जी, ज़्यादा टाइम ना कहना क्योंकि मुझे पता इस वेले बड़ा जनाब। शक ने लांझे मूरख खुलने नी, शक ने लांझे मूरख खुलने नी, दिल खंडूरी यार पे उल्ले। शक ने लांझे मूरख खुलने फजरी ने, दिल खंडूरी यार पे उल्ले फजरी ने। ते दिल डुबी डुबी जाना हठ नहीं पैना, यादां ने पे चखड़ झुल्ले फजरी ने। ते कंधा ने भी कन होने नी ताई ते, कंधा ने भी कन होने नी ताई ते, ओले ओले राज पे खुलने फजरी ने। ते सुकियां मीटिंग कीती मिकी रोलने नी, सकियां मीटिंग कीती मिकी रोलने नी, अपने हथों तक पे रुले फजरी ने। नजरां अगे मंजर फिलिया करबल ना, नजरां अगे मंजर फिरिया करबल ना, अखियां विचों अथरू डुल्ले फजरी ने। चंगे वेले लोकां दर नठे जाने, चंगे वेले लोकां दर नठे जाने, मैं सद्या ते नसने जुलने फजरी ने। ते नेरे की जफियां लाने आले तक खां, नेरे की जफियां लाने आले तक खां, ठोडे खाने राह पे पुलने फजरी ने। ते तकिया नहीं यारां की धोखा देने आले, राशिद अब्बासी साहब तुसां दी नज़र सर, तकिया नहीं यारां की धोखा देने आले, कखा ने ओ मुल पे तुलने फजरी ने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। खोक में रखे पाले हुए ख्वाब को, जब तलक आंख माँ बन के रोती नहीं, नज़्म होती नहीं। अगली शायरा फ़ाखरा नूरी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुनक्कद होने वाले मुशायरों में आपने उनको देखा है। इनकी उर्दू नज़्मों का मजमुआ सुरमई अपना कलाम पेश करें और अपने शेरी मजमुए के हवाले से मुख्तसर तारुफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुझे अपनी किताब के साथ यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मेरे पब्लिशर पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले
मेले में मसरूफ़ होने की वजह से किताबें मुझे भेज नहीं सके, तो किताब आ चुकी है लेकिन मुझ तक नहीं पहुंची। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से कुछ पेश करने से पहले थोड़ा सा अपनी किताब के बारे में बताऊंगी कि अमूमन मेरी पहचान एक फेमिनिस्ट या बोल्ड राइटर के तौर पर होती है। मैं खातून के, औरत के जिस्म और जिन्स के, उसके जज्बात के असबात की कायल हूँ और उसको नारा नहीं बनाती हूँ। यानी मेरे यहाँ ये मौजू मौजूद है, लेकिन ऐसे ही जैसे किसी भी इंसान के जज्बात का इजहार होता है, इसी तरह औरत के जज्बात को बहुत सुकून और इत्मीनान से नारे की बजाय बस इजहारिये की सूरत देती हूँ। लेकिन जो आप अहबाब के लिए मैंने नज़में सेलेक्ट की हैं वो ज़रा और जायके की हैं। मैं समझती हूँ कि एक बाशऊर महफिल है ये, और यहाँ पर शायद इससे बेहतर कोई और मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है इस नज़्म को पढ़ने का। लिखारी और दिए की खामोशी नज़्म का उन्वान है। उजरती पेशावर मातमी, उजरती पेशावर मातमी उनको दरकार हैं जो रुदाली बने और फूलों के मातम में शामिल रहें। दस्ते गुलची की सारी कहानी लिखें, ये इजाज़त नहीं। उजरती पेशावर मातमी उनको दरकार हैं जो रुदाली बने और फूलों के मातम में शामिल रहें। दस्ते गुलची की सारी कहानी लिखें, ये इजाज़त नहीं। कुछ भी कहने की पादाश में वो जो गुमशुद हुए, जो उठाए गए वो पैगंबर न थे। कुछ भी कहने की पादाश में वो जो गुमशुद हुए, जो उठाए गए वो पैगंबर न थे। कुछ की तदफीन बेनामी कब्रों में है, कुछ की लोहें सफ़ा खाक की टुकड़ियाँ जिन पे बादल भी साया फिगन अब नहीं। जो उठाए गए वो पैगंबर न थे। कुछ की तदफीन बेनामी कब्रों में है, कुछ की लोहें सफ़ा खाक की टुकड़ियाँ जिन पे बादल भी साया फिगन अब नहीं। जो उठाए गए आसमां तक पहुँचने की उम्मीद क्या, उनके पाँव के नीचे ज़मीं भी नहीं। जो उठाए गए आसमां तक पहुँचने की उम्मीद क्या, उनके पाँव के नीचे ज़मीं भी नहीं। और कराइन शवाहिद दलाइल की रूह से ये साबित हुआ, जो उठाया गया वो कहीं भी नहीं। बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म है जी आसमा जहांगीर के लिए, आसमा जहांगीर और उसी कबील के लिए एक नज़्म। उसे जन्नत तो क्या मिल पाएगी, जन्नत में ऐसी औरतों को दाखिले की कब इजाज़त है। उसे जन्नत तो क्या मिल पाएगी, जन्नत में ऐसी औरतों को दाखिले की कब इजाज़त है। न उसकी पिंडलियाँ शफाफ ऐसी थीं कि उनमें से गुजरता खून गरमाता लहू शरियान मुर्दा का। न उसने वो गला पाया कि रग रग से दिखाई देता मशरूबे मुतहर, पीने वालों में कोई हैजान भर देता। न आंखें ही गिलाफी जिनकी पलकें साया बन जाती, खुदा के बंदगाने खास की खातिर जो अपने ज़ुहद के सहराओं की लंबी मुसाफत से थके, टखनों तलक पहनी शरा के बोझ से उकताए, दाढ़ियों के झाड़ में खुशबुए नाफा मलमलाकर कर्नहा से उसकी खातिर सब लजाइज छोड़कर तैयार आएंगे। उसे कब ये सलीका था कि ऐसी दिलरुबा ठहरे जिसे मर्दाने हुर की ख्वाहिशे नामुख्तमम तस्कीन करने की हजारों साल तक की उम्र भी कम हो। वही मर्दाने हुर जो उसकी चाहत में जहाने फान की कम जात नाकिस अक्ल की मखलूक को पैरों की जूती मानते और उसके शर से बच निकलने की दुआएं याद करते रह गए थे। जिनको हमेशा वजद में रखती थी उम्मीद बकारत, वो भी ऐसी जो उन्हें हर बार पहली सी मोहब्बत दान कर देगी। उसे निस्बत ही क्या उनसे, वो जिनका धड़ ज्यादा बोलता हो, कासाए सर खनखनाता हो। उसे निस्बत ही क्या उनसे, वो जिनका धड़ ज्यादा बोलता हो, कासाए सर खनखनाता हो।
जुबां कम बोलती हो और बोले भी तो मीठे बोल हों, शहवत भरी बेताब लज्जत की बहुत दिलदादगी हो। जुबां कम बोलती हो और बोले भी तो मीठे बोल हों, शहवत भरी बेताब लज्जत की बहुत दिलदादगी हो, सर बसर हरफे तलज़्ज़ुज़ हो। भला मलून औरत किस तरह जन्नत की खुशबू सूंघ पाएगी? भला मलून औरत किस तरह जन्नत की खुशबू सूंघ पाएगी? रिवायत है कि ऐसी औरतें होंगी जहन्नुम के किसी तारीक तर गहरे गड्ढे में, और उनके गिर्द अपनी ही ज़बान लिपटेगी गोया लपलपाती आग की सूरत। खुदाया ऐसी औरत के लिए बस इतना कर देना, उसे जैसे जहां रखना मगर उसकी जुबान रखना। बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शफ़क़त हुसैन से, जिनका पंजाबी शेरी मजमुआ है मसलत अखरां दी। अगर वो हाल में मौजूद हैं, जनाब शफ़क़त हुसैन। जनाब सज्जाद मीरानी साहब, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ, उनका सिंधी शेरी मजमुआ अभी हाल ही में शाया हुआ है, सिंध सोहन ऐं सच। सिंध खूबसूरती और सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजे शाइरीअ जो ही किताब सिंध सूंह ऐं सच, जेको 2024 में छपियो आहे, मुंहिंजो पंजो किताबु आहे सिंधी शाइरीअ जो। ऐं सिंध सूंह ऐं सच सजाद, जिते टिनी जी ॻाल्हि हले उते तूं बि अचु सजाद। सभ खां पहिरियां मां मुबारक ॾियां थो इंडस कल्चरल फोरम वारनि खे, जिन जेको आहे सो ही बहितरीनु मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां ही ॾहों मेलो रचायो। ऐं कुझु शेर मां अर्ज़ु कयां थो। कूज़े में दरिया न बंदि कर, कूज़े में दरिया न बंदि कर, मस्जिद में अल्लाह न बंदि कर। कूज़े में दरिया न बंदि कर, मस्जिद में अल्लाह न बंदि कर। नहन अक़रब पढ़ तूं मुल्ला, सूफ़ीअ जो यार साह न बंदि कर। तुंहिंजो मुंहिंजो प्यार आहे पवित्र, मूंखां पंहिंजो चाह न बंदि कर। सुंदड़ीअ जो सिंगार आहे सिंधू, सिंधड़ीअ जो सिंगार आहे सिंधू, मुंहिंजो यार दरिया न बंदि कर। फिरकनि में फासाए न मूंखे, सिंधड़ीअ जो सिंगार आहे सिंधू, मुंहिंजो यार दरिया न बंदि कर। फिरकनि में फासाए न मूंखे, मूंखे फिरकनि में फासाए न मूंखे, मुंहिंजो यार वेसाह न बंदि कर। हिकिड़ो ॿियो गज़ल आहे। वक़्त जे वहकिरे में वही थो वञा, वक़्त जे वहकिरे में वही थो वञा, यार आहियां मिटीअ जो ड्रही थो वञा। वक़्त जे वहकिरे में वही थो वञा, यार आहियां मिटीअ जो ड्रही थो वञा। तुंहिंजे ॿेड़ीअ में गोरो रुगो माई हां, तुंहिंजे ॿेड़ीअ में गोरो रुगो माई हां, तुंहिंजे चए खां अॻे ई लही थो वञा। ओ वाइद तूं दोज़ख जा दड़का न ॾे, ओ वाइद तूं दोज़ख जा दड़का न ॾे, ऐं पाण ई ख़ुदा सां ठही थो वञा। ओ वाइद तूं दोज़ख जा दड़का न ॾे, ऐं पाण ई ख़ुदा सां ठही थो वञा। सिंधु धरतीअ सिंधूअ जो जेसीं थिए आजपो, पंहिंजे सिंधूअ जो जेसीं थिए आजपो, आउं तेसीं तुरम में रही थो वञा। इश्क मुंहिंजी इमामत कंदो अॼु जिते, इश्क मुंहिंजी इमामत कंदो अॼु जिते, आउं सजाद ओॾां कही थो वञा। वक़्त जे वहकिरे में ड्रही थो वञा, यार आहियां मिटीअ जो ड्रही थो वञा। महिरबानी। हम मुंतज़िर थे नासरा ज़ुबैरी साहिबा के, लेकिन शहर में मेरा ख्याल है काफ़ी तकरीबात हैं, तो शायद वो हमारी तकरीब से उठ के किसी और जगह चली गई हैं। तो अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुर्शदी जनाब अहमद इम्तियाज़ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें और अपनी किताब के बारे में भी
ہمارے حاضرین کو اور ناظرین کو بتائیں. جناب احمد امتیاز صاحب. وہم و گماں ہونے سے پہلے، یہ میری غزلوں کا مجموعہ ہے، اور زندگی بھر میں یہ ایک ہی مجموعہ چھاپ سکا ہوں. شاید میرے لیے شاعری بڑا مشکل کام ہے، شاید میرے بس کا نہیں. میں اس مجموعے میں سے ایک غزل سنا کے آپ سے اجازت چاہوں. توجہ سے سنیں اور داد بھی اگر دیں تو بڑی مہربانی. محبتوں کا مال مانگوں کہ رزق مانگوں، یا اللہ. محبتوں کا مال مانگوں کہ رزق مانگوں، خدا سے اس کا وصال مانگوں کہ رزق مانگوں. دعا کو اٹھتے ہیں ہاتھ لیکن یہ سوچتا ہوں، دعا کو اٹھتے ہیں ہاتھ لیکن یہ سوچتا ہوں، کسی ہنر میں کمال مانگوں کہ رزق مانگوں. جو زندگی کی فریب کاری سے بے خبر تھے، جو زندگی کی فریب کاری سے بے خبر تھے، وہ اپنے بچپن کے سال مانگوں کہ رزق مانگوں. جو زندگی کی فریب کاری سے بے خبر تھے، وہ اپنے بچپن کے سال مانگوں کہ رزق مانگوں. بچھڑ گئے ہیں جو عمر رفتہ کے راستے میں، بچھڑ گئے ہیں جو عمر رفتہ کے راستے میں، میں اپنے وہ خد و خال مانگوں کہ رزق مانگوں. ادھر تقاضا ہے روح کا اور ادھر بدن کا، متاع خواب و خیال مانگوں کہ رزق مانگوں. بہت شکریہ جناب. کیونکہ ایک کتاب کا نام جس غزل کے مطلع سے میں نے لکھا ہے وہی سنا دیتا ہوں، نکلا ہی ہے. بتا وہم و گماں ہونے سے پہلے، کہاں تھے ہم یہاں ہونے سے پہلے. بتا وہم و گماں ہونے سے پہلے، کہاں تھے ہم یہاں ہونے سے پہلے. نہ جانے کیسا منظر تھا خلا کا، زمین و آسماں ہونے سے پہلے. کہاں گردانتے تھے فاصلوں کو، دلوں کے درمیاں ہونے سے پہلے. مقدر کیمیا ہونا کہاں تھا، جلے ہم بھی دھواں ہونے سے پہلے. مقدر کیمیا ہونا کہاں تھا، جلے ہم بھی دھواں ہونے سے پہلے. ملے ہو کس لیے اب خاک ہو کر، کہاں تھے رائے گاں ہونے سے پہلے. ملے ہو کس لیے اب خاک ہو کر، کہاں تھے رائے گاں ہونے سے پہلے. کہاں ہوتا ہے اندازہ جنوں کا، کوئی کار زیاں ہونے سے پہلے. اجالے کی بشارت دے گئے ہیں ستارے بے نشاں ہونے سے پہلے. ملامت کا ہدف ہوتی رہی ہے محبت داستاں ہونے سے پہلے. ہماری شہر میں اوقات کیا تھی ایک اس کے مہرباں ہونے سے پہلے. ہماری شہر میں اوقات کیا تھی ایک اس کے مہرباں ہونے سے پہلے. تو کیا کوئی حویلی تھی ہماری کرائے کا مکان ہونے سے پہلے. بہت شکریہ جناب. جناب علی میں نے آپ کو پہچان دیا تھا، میں نے کہا یار آپ مصروف ہیں. نہیں اور کے لیے بڑی نوازی، بہت محبت. میں نے کہا میں آخر میں ملوں گا جب فارغ ہو جاؤ گے. اور سب ٹھیک ہے سر؟ میں ملتا ہوں. ہاں انشاءاللہ. جی اب یہ شعر آپ سن لیں پشتوں میں. دا خورے لک پپام را بادوا دا وطن بادا، دا خورے
Lek papam rabadawa da watan bada pastar go ke me ukh ki di po ukh ko ki zakhmuna. रहमत शाह साहिल साहब दर्जनों शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं इनकी। असर हाजिर के पश्तो ज़ुबान के सबसे बड़े और सबसे मशहूर शायर रहमत शाह साहिल साहब, जो कि पश्तो ज़ुबान का फ़ख्र समझते हैं हम इन्हें। मुहतरम रहमत शाह साहिल साहब। मेरा ख्याल था कि मैं एक गज़ल पुश्तो में और एक छोटी सी नज़म मैंने लिखी है, वो उर्दू में है। मुझे उर्दू तो नहीं आती, कोशिश की है, मगर अभी लोग भी चले गए हैं। ये जो बाकी रह गए हैं, शुक्र है इनमें शायर नहीं रहे। तो ये नज़म मेरे ख्याल में ये गज़ल छोड़ दूंगा और ये नज़म जो है मैं आपके खिदमत में पेश करने के लिए, ये इसकी एक उन्वान जो है वो एक तरफा मुकालमा, इसकी उन्वान है। नज़म है एक तरफा मुकालमा। आप मालूम कर सकते हैं कि ये मुकालमा किस किस के दरमियान है। ए मेरे दिल की, ए मेरे दिल की धड़कनों में दर्द की बहर रवां, ए मेरे दिल की धड़कनों में दर्द की बहर रवां, ए मेरे माह जबीन माह ताबान जान जाना, तेरे दो नैन तो है मेरे लिए दोनों जहां। आज तो मेरा बदन ऐसे दर्द में डूबा है, आज तो मेरा बदन ऐसे दर्द में डूबा है जैसे अंगारों की शोलों में गोतज़न हो कोई। आज तो मेरा बदन ऐसे दर्द में डूबा है जैसे अंगारों की शोलों में गोतज़न हो कोई। मैं तुमसे आज कोई बात कहने वाला हूं, मैं तुमसे आज कोई बात कहने वाला हूं, मगर दर्द ऐसा कि होंठों पे बात जलती है। मैं तुमसे आज कोई बात कहने वाला हूं, मगर दर्द ऐसा कि होंठों पे बात जलती है। आ मेरे सामने तुम बैठ फकत दो लम्हे, आ मेरे सामने तुम बैठ फकत दो लम्हे, आज मैं तुमसे कोई बात कहने वाला हूं। आ मेरे सामने तुम बैठ फकत दो लम्हे, आज मैं तुमसे कोई बात कहने वाला हूं। डरो मत प्यारे मेरे, प्यारे मेरे, प्यारे मेरे, डरो मत प्यारे मेरे, प्यारे मेरे, प्यारे मेरे। मेरे अश्कों की बारिशों की नजारा भी करो, मेरे अश्कों की बारिशों की नजारा भी करो, मेरे चूर चूर बदन का कोई चारा भी करो।
तुम्हें मालूम है कि मैं तो अभी जिंदा हूं। तुम्हें मालूम है कि मैं तो अभी जिंदा हूं, मगर तुम्हारे लिए कैसे कहूं कि अब भी जिंदा हूं। मगर तुम्हारे लिए कैसे कहूं कि अब भी जिंदा हूं। मैं अब तुम्हारी दिलदारी के लिए, मैं अब तुम्हारी दिलदारी के लिए, मैं अब तुम्हारी दिलबरी के लिए, मैं अब तुम्हारी मजदूरी के लिए, जाने मन तेरे लिए, तेरे सिंगार के लिए, वही मजदूर नहीं अब, वही दिलदार न रहा। जाने मन मत रखो हाथ, जाने मन मत रखो हाथ मेरे इस जख्म होंठों पर। आज मैं जो बात कहने वाला हूं वही बात सुन लो मगर मेरी इस बात पे मातम न करो। आज मैं जो बात कहने वाला हूं वही बात सुन लो मगर मेरे इस बात पे मातम न करो, मेरे परवाह न करो, गम न करो। चलो बाजार चलो भीख मांगने के लिए। चलो बाजार चलो भीख मांगने के लिए, मगर एक और बात भी याद रखो, अपनी चेहरे पे कुछ हिजाब न करो, अपनी चेहरे पे कुछ हिजाब न करो, रस्म खैरात की आदाब को खराब न करो। अपने चेहरे पे कुछ हिजाब न करो, रस्म खैरात की आदाब को खराब न करो। गुर्बत के मारे हुए जर्द चेहरे कभी छुपाने से चुपते तो नहीं। गुर्बत के मारे हुए जर्द चेहरे कभी छुपाने से चुपते तो नहीं। और किसी को अपनी गुर्बत की वजह गुर्बत की कहानियां न कहो, यहां सब आंखें दीवानी है, यहां सब आंखें दीवानी है और महरूम है जमानों के। यहां सब आंखें दीवानी है और महरूम है जमानों के। यहां गुर्बत के मारे चेहरों में भी सब आंखें ढूंढती है हुस्न जमाल। यहां गुर्बत के मारे चेहरों में भी सब आंखें ढूंढती है हुस्न जमाल। यहां कोई भी गरीबी की जुबान न कि भी जानते हैं और न जान सकते हैं। आज के बाद न तुम रोएगे न मैं कुर्बान, आज के बाद न तुम रोएगे न मैं कुर्बान। हम तुम प्यार करने वाले गदायान वतन। माना ना। और अब मुशायरे के आखिर में जैसा कि आपने देखा, ये नाबगाए रोज़गार शख्सियात जिनकी खिदमत में हमने कल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी पेश किए, तो शाह बेग शहदा साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हमें अपनी किताब के बारे में भी थोड़ा तारुफ अता कर दें और कुछ शायरी भी सुना दें। किताब का नाम है आसरातियत से।
अभी मैं क्या बताऊं कि इसका उर्दू में क्या बनता है। आसराती सुकून है, अमन है, खुशहाली है, बहुत से मानों से है। तो ये मेरी किताब का नाम है आसराती अंदर से। ये मेरी 5वीं मजमूआ है शायरी की। इसके अलावा बहुत से किताबें हैं, वो मुंतज़र हैं छपने के लिए। आप कहेंगे इसमें क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें गज़लें हैं, नज़्म हैं, गज़लें हैं, गीत हैं, और इसका जो है पूरा आपका कहें कि किसका तशरीह करो क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, बलूचिस्तान का बाशिंदा हूँ। तो 70 सालों से हम ये सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। मगर क्या कहूँ, हम 70 सालों से यही देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। 3 बैनुल-अक़वामी शाहराएँ हमारे इलाके से गुजरते हैं, ईरान के लिए, तुर्की के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, यहाँ से लंदन के लिए। तो ये बखुदा अभी तक दोहराया नहीं है, और रोज़ जितने जाने जाते हैं वो हमें मालूम है एक्सीडेंटों में। और इसी तरीके से पानी नहीं है, तालीम से महरूम, बीमारी के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो रोज़गार नहीं है। 2-3 मिलें थी, लसबेला टेक्सटाइल मिल, बरेली टेक्सटाइल मिल, सरियाब मिल, अरनाई वुलन मिल, मसूम के वुलन मिल, तो ये सारे बंद हो चुके हैं, कोई रोज़गार नहीं है। इसके एवज़ फिर क्या, रोज़गार ना हो, सेहत ना हो तो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान का हर बरसर इक़्तिदार हुक्मरान आता है, वो ये कहता है कि बलूचिस्तान के साथ जुल्म हुआ है, बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हुआ है, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हम अभी बलूचिस्तान को 4 चाँद लगाएंगे, हम बलूचिस्तान को तरक्की देंगे। ये आज से नहीं, 70 सालों से, चाहे जमहूरी हुकूमत रहा हो, नीम जमहूरी रहा हो या डिक्टेटरशिप रहा हो, सब यही कहते रहे हैं कि हम आपके दुखों पर, आपके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। लेकिन फिर वो आकर क्या कर गए हैं, हमान उससे ज़्यादा वो हमारे साथ करके गए हैं। तो मेरा ये शायरी मजमूआ यही है पूरा इसी पर। तो इस किताब में जो कुछ है मैंने उसका बताया आपको। अभी आप लोगों का शुक्रिया। आते हैं शेर की तरफ। यहाँ कोई 2-3 आदमी भी हमारे जुबान के बैठने वाले नहीं हैं, तो खैर रस्म है ये। पाकिस्तान में जो है जुबानों का गुलदस्ता है, और मैं अपनी मादरी ज़ुबान में शेर कह रहा हूँ। आपको पसंद है या ना है वो आप लोगों की मशा। अर्ज़ के अंत अंतस गड़े दावड़े मन पर,
अंतु अंतस गड़े दावड़े मन पर खाटुबा हो चढ़े दावड़े बनने पर अजे के चूर देस करे ओ न्याले खना चूर देस करे ओ न्याले खना के कर लड़े दावड़े मन पर अजे के कट्याए कना दे उन्हनि ओखने कट्याए कना दे उन्हनि ओखने सब बड़े ओ बड़े दावड़े बनने पर अर्ज के थे कुरांठो की ईतस करे के थे कुरांठो ओ ई की ईतस करे कश दाखस पड़े दावड़े बनने पर अर्ज के कैद गम थे टी बस दा शबादी कना कैद गम थे टी बस दा शबादी कना ख्वाह को दा सड़े दावड़े मरने पर कस के गम था ये केव थे ना किससे गम था ये केव थे किससे गम था ये केव थे ना आगे साज के ओनड़े दावड़े मरने पर ओ चुना था वड़ट थे दिलासा करी चिक्के और बड़े दावड़े मरने पर खीसुने पितरस के कन किन तिखिक खीसुने पितरस के कन के तिखिक दादे ऐठी जड़े दावड़े मन पर दिया पीउन कना रिशेदा मतौ दिया पीउन कना रिशेदा मतौ चावा होता अरे दावड़े मन पर अंतु अंतस गड़ा दावड़े मन पर काटुमा ओछड़े दावड़े मन पर बस मेरे भाई बहुत शुक्रिया। हाल में मौजूद जो शोराए कराम बच गए हैं वो अगर तशरीफ लाएं तो एक ग्रुप फोटो हो जाए जो बच गए हैं ना चंद तो तशरीफ लाएं। मुनव्वर भाई, नसीर मेमन, आप लोग भी हैं। चलते रहे बस उधर सही